ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಎಸ್ಡಿವಿಎಸ್ ಸಂಘದ ಶ್ರೀ ಎಲ್ ಕೆ ಖೋತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಎಚ್ಎಲ್ಎಲ್ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಕಣಗಲ ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಎನ್ ಗುಪ್ತಾ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯುನಿಪಿಲ್ ಅವರು ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಿರಾಜಿ ಪಾಟೀಲ್ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಅಧಿಕಾರಿ ಎಚ್ಎಲ್ಎಲ್ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಕಣಗಲ ಇವರು ಎಚ್ಐವಿ ವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ ರೋಗದ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎಸ್ಡಿವಿಎಸ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಐಕ್ಯೂಸಿ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಏಡ್ಸ್ ನಿವಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜಿಎಚ್ ಚಿಗರಿ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಕೌಟ್ ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಸ್ ಘಟಕದ ಝಡ್ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹಿರೇಮಠ್, ರೆಡ್ ರಿಬ್ಬನ ಘಟಕದ ಎಂಎಸ್ ಕಾಂಬಳೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಕಾಲೇಜು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಎಚ್ಎಲ್ಎಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವಬಸವ ಲೈವ್ ಸಂಕೇಶ್ವರ್. Professor J.D. Multani sir and Sri M.A. Hemant madam, scouts in charge. I happy to welcome all the employees of our HLL and I also welcome my students. It is really a great pleasure to meet you people. Even though ವಿಶ್ವ ಏಡ್ಸ್ ಕುರಿತಂತ ಜನಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಶ್ರೀ P.N. Gupta ಸರ್. To our education coordinator, I request the panel to present. Nation. Already Gupta sir said what is HIV and that deadly virus killing millions of people. Already the world lost 38 millions of people. Presently 36 millions of people are suffering from this virus. So it is the duty of students, we people, to create awareness among the youth. So I am very much thankful to Matthew sir, Paswani sir, Gupta sir and all HLL team, and we have some of our student alumni here. It is our duty to create awareness for the well-being of the family, well-being of the society and well-being of the nation. The HLL has been contributing more to the development of the nation by creating such type of awareness program, creating awareness among the society. Its role is very important for the welfare of the society. You know, modern societies are welfare states. The intention of the government is to welfare of the society. It is you have to promise, you have to take oath regarding we will contribute more for the society benefit or creating welfare among the people. So I request all the students. Already sir told why we are celebrating the international or national AIDS day and what are the symptoms and what are the precautions to be taken, what are its effects. So most of the people, they have lost their loved ones because of this HIV or AIDS, and it is our prime duty to create awareness among HIV and AIDS. And with these words I conclude my speech. Thank you, and once again I am very much thankful on behalf of our management and on behalf of our college and students and staff, the HLL team and higher authorities for giving me this opportunity to conduct this type of program in collaboration with HLL. Thank you sir, thank you so much. Yes sir, उपस्थित गुप्ता सर, HR डिपार्टमेंट, यूनियन अधिकारी और हमारे ORCR के सेक्रेटरी शशि कुमार सर और यहाँ उपस्थित NCC ऑफिसर और मुंगट सर और क्लब के सेक्रेटरी कुंगार सर और यहाँ उपस्थित सब कॉलेज के स्टूडेंट्स और हमारे HLL के एम्प्लॉय, आप सभी को मेरा आज HLL वर्ल्ड HLL एड्स अवेयरनेस
की शुभकामनाएं के साथ आप सबका स्वागत है ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಡ್ ಸೇವಾ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮರಾಠಿ ಮೀಡಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ आप सभी को धन्यवाद ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳು 50 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ 1956 ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೋಗ ನೆಗೆತಿ ಅದು ಯಾವ ರೋಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದು अफ्रीकाನಲ್ಲಿ नेक्स्ट 1965 न्यूयॉर्क में अफ्रीका न्यूयॉर्क में एक पेशेंट मिला ಒಂದು ಜನ ಸಿಕ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅದು ಆಮೇಲೆ 1981 ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಎಂಥ ರೋಗ ಇತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ WHO ने 40 साल रिसर्च किया 40 ವರ್ಷ ರಿಸರ್ಚ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ HIV ಏಡ್ಸ್ ಲಾಗನ್ ಅದು ವೈರಲ್ ಯಾವ ಜೀವಾಣು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾವ ವಿಷಾಣು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡೈಲಿ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ವೈಟ್ ಟಿಶ್ಯೂಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾವ ಆಮೇಲೆ ನರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನರ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ 6 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ 10 ವರ್ಷ ಹೋಗಿದ್ದ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂಡಿಯಾದಾಗಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ದವಾ ಇಲ್ಲ इसके ऊपर अभी तक मेडिसिन नहीं उपलब्ध हुआ है इसलिए उसको अवेयरनेस है अब भारत सरकार ने WHO के माध्यम से 1966 में इंडिया में केरल में पूजापुरा में जब हमारे बी संक्रांत सर थे मंत्री आरोग्य मंत्री थे उन्होंने सोचा कि जैसे जैसे भारत की भी जनसंख्या बढ़ रही है फैमिली प्लानिंग का जो निवारण का नियोजन के जो हमको चीज़ा उत्पन्न करना है उसके लिए उसके साथ साथ जो कंडम फैक्ट्री यहाँ 1985 में कनाडा में स्थापित हुई उसका मेन उद्देश्य है कि भारत की जनसंख्या को रोक लगाना उसके साथ साथ जो रोग बढ़ते गया था 15 साल हुए थे एड्स की संख्या बढ़ते जा रही थी भारत सरकार ने नियोजन करने के लिए एड्स का नियोजन के लिए हर शासकीय अस्पताल में और संस्थाओं के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम लिया उनके लिए और जो रोग ग्रासित है एड्स ग्रासित है उन्हें हमारे साथ केंद्र शासित के हम जो उद्यम है और भविष्य हमारे ऑफिस है वहाँ से चलन पीपीटी लाइफ के अस्पताल से और हमारे हिंद जैसे सेंटर से एड्स अवेयरनेस का प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से होता है वो हमारे एम्बुलेंस है जैसा कि उत्तरी भारत में एम्बुलेंस है उसमें डॉक्टर रहते हैं और जो नर्स होता है वो गांव घूमते गए उन्होंने एड्स के बारे में अवेयरनेस किया फैमिली प्लानिंग में अवेयरनेस किया जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा महिला और जो ड्राइवर लोग होते हैं वहाँ से संक्रमित होने का ज़्यादा चांस था जैसे कि उसका लक्षण मैं बताता हूँ कि वो ब्लड से ब्लड ट्रांसमिट होता है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति अनेक व्यक्ति से यौन संबंध रखता है उसमें क्या होता है अगर एक यौन संबंध से एक व्यक्ति को एड्स हुआ है तो ऐसा एक संबंध रखने से दूसरे को लगता है वो और लेडी प्रेगनेंसी होता है तो प्रेगनेंसी के बाद में अगर उसको एड्स है तो उनको बेटा भी ऐसा ही वो एड्स जैसा पैदा होगा और उससे बढ़ते बढ़ते जा अपना परिवार में बढ़ते जाता है अनेक युवा वर्ग है आज चैनी से इधर उधर जाने से घूमते रहते हैं उनको मालूम नहीं कि यहाँ चैन करते वक्त लेडीज से संबंध आता है यौन संबंध आता है बड़े बड़े सिटी में अभी एड्स फैला हुआ है किनको मालूम नहीं इसको एड्स है या नहीं है इसलिए एड्स को जागरूकता रखने के लिए ब्लड टेस्ट करना होता है अभी जब ब्लड पेशेंट को दिया जाता है तो ब्लड की पहला HIV जांच होना चाहिए और जब हम दवाखाने जाते हैं तो हम डॉक्टर से इंजेक्शन लेते हैं तो इंजेक्शन भी वो यूज एंड थ्रू का सीरीज यूज करना बोलना है जब वो बार्बर की दुकान में जाते हैं नामी के पास सेविंग कर लेते हैं तो ब्लड से ट्रांसफर हो HIV इसलिए उनको बोलना है कि नया ब्लड लगा दो ऐसे बढ़ते बढ़ते एड्स के पेशेंट बढ़ते थे इसलिए उनके ऊपर दवाइयाँ लेने से अवेयरनेस करने के लिए हम फैमिली में और परिवार में बताना है कि घर में बताना है जो हम बाहर जाते हैं इंजेक्शन गोली लेते तो यूज एंड थ्रू का सीरीज यूज करो नहीं तो सूजी 40 मिनट तक गर्म पानी में डालना चाहिए और यूज करना चाहिए
और ब्लड डोनेशन करते हैं, नहीं तो ब्लड लेते हैं ब्लड बैंक से, तो उसके HIV जांच करके यूज करना है। और जहाँ इधर उधर जाता है, हम भीड़ में जाता है, तो HIV समझ के दूसरों से हम डरना नहीं है, वो ब्लड से संक्रमित होता है। अभी बहुत सारे एड्स नियोजन के निवारण से इंडिया में अवेयरनेस हुआ है, और सर ने आपको बताया फिगर लाखों लोग तो इंडिया में भी एड्स के अभी बहुत कम मिल रहे हैं, और HLL इसमें बहुत अच्छा है। HLL का मेन उद्देश्य है कि जो फैमिली प्लानिंग का जो हम चीज बनाते हैं, जैसे कंडोम है, गोलियां है, ब्लड बैग है, अन्य साधन आदि, सैनिटरी नैपकिन भी हमारे HLL ने किया है। वो हमारा हैप्पीडेज का नैपकिन बहुत सारा प्रसिद्ध है, और मुफ्त दर में और कम से कम रेट में कंडोम, टैबलेट, मलारी को मुफ्त दिया जाता है। सैली जैसी गोलियां है वो भी बहुत अच्छी काम करती है। अभी सैनिटरी नैपकिन है, इंडिया में फर्स्ट टाइम हमारा WSC प्रोडक्ट 50 करोड़ देखे हैं। संक्रांत साल में जब गुलाबपुर में आजाद थे, तो वहाँ से ओपनिंग हुआ था। वो प्लांट इतना भारी है कि इंडिया में किधर पे ऐसा प्लांट नहीं है, इतना ऑटोमेटिक और WHO मॉडर्न प्लांट है। उसको अगर हमको आज हमारा रिसर्च का सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन ऑर्डर मिलना इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगर वो प्रोडक्ट हमको, अगर उसके शाश्वत से हमको प्रमाण पत्र तो मिला है, लेकिन प्रोडक्शन मिलने में करोड़ों रुपए का हमारा HLL का व्यापार होता है। फिर भी आप हिंद लैब और औषध शास्त्र में हमारे इंडिया ने, HLL ने करोड़ों रुपए की संपत्ति बना दी है। हमारे HLL PPT एक संस्था ऐसा है कि सोशल ना लाभ ना टूटा, उसे पूरा वर्ल्ड में, पूरा इंडिया में कंडम बना के भेज देता है, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी देता है। HLL लाइफ केयर का कंडम इंडिया में सबसे ज्यादा, और वर्ल्ड में भी 1 नंबर कंपनी HLL लाइफ केयर है, कंडम बनाते हैं, कंडम बनाने के लिए। तो सबसे ज्यादा मैं विश्व संगठन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे टेढ़े गांव में एक प्लांट बना के सभी लोगों को रोजगार दिया है। एक बड़ा और एक साल में जैसा रैली, ऐसे अनेक कार्य हमारे HLL से क्लब के माध्यम से हमने किया है। इधर नजदीक में घटप्रभा में था, उधर एक एड्स निवारण केंद्र है, वहाँ के लोगों से कांटेक्ट करते हैं। निपानी में भी एक केंद्र है, वहाँ से सभी लोगों को एड्स निवारण के एक्सपर्ट को बुला के हम सभी को पथनाट्य ऐसा रैली बुला के सभी को अवेयरनेस प्रोग्राम किया है।